Good morning, students. Today we are going to start with the second chapter of your political science book, that is about the role of the government in health. In this chapter, we will be discussing the concepts like what is health, what are the various healthcare facilities available in India. We will talk about the difference between the public and private healthcare sectors. What are the private healthcare facilities which are available in our country, and we will also be talking about, we will also try to understand, is educate healthcare is available to all of us, and what are the equalities, and what are the drawbacks of the health care facilities, what steps need to be taken, and we will also discuss about an example from our own country and one example from the other countries, so that we can understand what is happening regarding the healthcare in the countries abroad. Okay, so let's the pattern will be same, that we will be reading and taking the important extract from your NCERT notebook and then discussing all the concepts which we are supposed to cover in this particular chapter. So trust you are having your notebooks and pencils along with you. So let's begin with the reading. That is, I'm starting from page number 18. Role of the government in health. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. Right? In a democracy, like, the government is committed. It's the job of government to work for the welfare of its citizens, and that includes education है, health है, उनको employment देना, उनको अच्छी housing facility देना, अच्छा infrastructure build करना, roads, transportation, everything which is which is going to affect the life of citizen in one or other way, that has to be taken care by the government only. राइट और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट ऑफ टू हेल्थ को, इट इज लाइक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बट देन we need to discuss whether the provisioning is unequal, whether there is any dispersity in the application. क्या health facilities कैसी है, क्या work करना अभी भी रहता है after we have got independence since more than 70 years. तो अभी भी क्या हालात है उनको understand करना, गवर्नमेंट की क्या जॉब है, एज अ सिविलाइज सिटीजन हमारा क्या जॉब है इसके अंदर. ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, द basic infrastructure of health we are having, what are the required jobs done to which are need to be done by the government, how far the government is successful in accomplishing those things, everything you need to learn in this particular chapter. So in this chapter we shall examine the meanings and problem related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of the government? First of all, let's begin with understanding what actually is the meaning of health. Health का मतलब क्या है? हेल्थ के लिए आप उसको अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हो. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. मतलब कि अगर हमें किसी भी तरह का जो है, हम किसी भी तरह की इलनेस से या किसी भी तरह की चोट से, बीमारी से फ्री हैं. माइंड इट, आई नीड टू इंक्लूड द वर्ड मेंटल हेल्थ ऑल्सो. इट मीन्स योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ. मैं मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आजकल के अर्बन सेटअप में, आजकल के फास्ट पेस लाइफ के अंदर मेंटल इलनेस, जिसके बारे में लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं, एक बहुत ही थ्रेट की तरह हमारे सामने, हमारी सोसाइटी के सामने आ रही है. एंड यू ऑल आजकल जो बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ पॉपुलर हो रही थी, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो, दैट इज द सुसाइड केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. एंड वी विल बी टचिंग दिस थिंग ऑल्सो, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी आप सोशल पढ़ते हैं, तो वी ट्राई टू रिलेट द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस.
So that makes the things very clear because we can relate to the topic which we are doing. हमने जैसे लास्ट चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जब हमने पढ़ा था, जब हमने डेमोक्रेसी के चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, तो मैंने एक जो रिसेंटली यूएस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था ब्लैक और व्हाइट के बीच में, उस चीज को मैंने उठाया था कि वहां पर जो ब्लैक इंसिडेंस हुआ था. तो यहाँ जब मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ और मैं इंक्लूड कर रही हूँ मेंटल हेल्थ को आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, तो आई विल बी डेफिनेटली टचिंग द इशू विच इज नाउ अ डेज वेरी पॉपुलर एंड दैट इज रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि why and how mental health should be including in this topic of health. So moving ahead, अगर आप किसी भी तरह की इलनेस से, लाइक बी इट फिजिकल और मेंटल, उससे फ्री हैं, किसी भी तरह की इंजरी से फ्री हैं, तो दैट इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ. But health isn't only about disease. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. There is I'm reading the page number 19 and you can see some pictures over there. You can see how it's depicting the like slums, what is the condition over there. So relate these things. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be happy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in crumble condition, they will prone to illness. Obviously, अगर आप contaminated environment में रह रहे हो, contaminated water पी रहे हो, अगर आप pollution में ज़्यादा रह रहे हो, या आप को पानी की बेसिक सांस लेने की ये सब प्रॉब्लम्स है, तो आप कैसे सही रह सकते हो ना, आप फिट नहीं रह सकते. तो all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for large stretches of time. And where the thing of mental health comes, यहाँ पर concept आता है mental health का. अगर आप आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें आपका फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट दोनों वर्क करता है. आपका सराउंडिंग्स आपको इफेक्ट करता है, आपका ईटिंग हैबिट्स आपको, आपका लाइफस्टाइल आपको इफेक्ट करता है. तो उन सब चीज़ों by here I want to make you understand that health is not just कि आपको बुखार नहीं है या आपको कोई बीमारी नहीं है. That is not only health. Health का dimensions जो है वो बहुत elaborate हो रहे हैं. अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो फूडिंग है, जो लिविंग हैबिट्स है, जो वाटर है, जो पोल्यूशन है, हम उन सब से इफेक्ट होते हैं और उन सबको ही हम कंसिडर करेंगे when we are talking about health. So now you can understand that the job of government is not to open hospitals, not to provide medical facilities also. There are various things which like government have to do to keep its citizens healthy, right? उसमें उसको environment पे भी stress करना है, उसको drinking water, sewage, everything will be like touching this particular sphere. Okay, so let's talk about, let's move on to page number 20, which is healthcare in India. So we will be reading this out. Let us examine some of the aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and second column. Just go through this box and you will see what. India has the largest number of medical colleges in the world and it is among the largest producers of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. Wow. So इसमें एजुकेशन सिस्टम भी आ गया which is helping to like give medical facilities, medical education to our aspirants, जिसकी वजह से वो डॉक्टर बन के क्वालिफाई करते हैं. प्लीज अंडरलाइन द फर्स्ट लाइन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. 1 मार्क क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं. अब कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर साइड, healthcare facilities has grown substantially over the years. In 1950, there was only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,218. The book I am having is not having data beyond that. Trust, you will find out the figures of the recent time. India gets a large number of medical tourists
फ्रॉम मेनी कंट्री। इतनी ज़्यादा हमारी मेडिकल कंट्रीज अब कहीं वर्ल्ड में डेवलप मानी जा रही है कि हमको मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। ज़्यादातर आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ ये जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, यहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उनकी कंट्री के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनसे सुपीरियर मानी जाती है। Obviously, that's why they are coming to get treated over here. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. India is the fourth largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicine. Again, this is an important line. Please understand that India is the fourth largest producer of medicine in the world and is also a large exporter of medicine. Now coming to the next side of this particular column, most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. Why so? When so many people are getting doctorate medical in medicine, then why it is कि जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पर अभी भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन को अभी भी लाइक ट्रीटमेंट के लिए अर्बन एरियाज में आना चाहिए। डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस क्या है? टू गेट सेटल इन अर्बन एरियाज और टू गो अब्रॉड। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो। बहुत कम जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो कि रूरल एरियाज में जाकर वहाँ की हार्डशिप को फेस कर वहाँ की पॉपुलेशन को हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टडीज करते हैं। व्हेन दे बिकम अ डॉक्टर दे ऑप्ट टू सेटल इन एन अर्बन एरिया वेयर दे कैन अर्न मनी, और रादर दे वुड लाइक टू प्रेफर टू गो फ्लाई टू अब्रॉड एंड गेट सेटल देयर बिकॉज द रेम्यूनरेशन दे गेट फॉर द वर्क ओवर देयर इज मच हायर इन कंपैरिजन टू व्हाट दे गेट इन इंडिया। सो हर एस्पेक्ट को अपने माइंड में समझना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. Malaria. We all know what is the cause of malaria. You must have done this in science also. So mosquitoes breeding. There is a particular mosquito which cause this illness. So यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट का क्लीन होना, वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई गवर्नमेंट को। अगर एक डिसीज को रोकना है तो उसके लिए उनको एटमॉस्फेयर क्लीन करना पड़ेगा। एंड आई ट्रस्ट आप लोगों ने ऐसे अब बहुत हेल्थ केयर ऑफिशियल्स आपके घर पे विजिट करते हैं बारिशों के महीने में, जब लोगों के घर में कूलर चलते हैं कि आपके घर का कूलर साफ है, दिखाइए उसके पानी को आपने चेंज किया है, कहीं उसमें कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं, उसमें दवाई डाली है, क्योंकि दिस कैन स्प्रेड मलेरिया। सो दे आर नॉट डॉक्टर, दे आर हेल्थ केयर, दे आर मेंबर ऑफ एमसीडी, लेकिन उनको आपको हेल्दी रखने के लिए एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना जरूरी है, जिसपे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। यू कैन रिलेट दिस थिंग विद दैट। आपको मलेरिया की बीमारी से आप पीड़ित न हो जाएं, इसलिए घर घर आके एमसीडी के ऑफिशियल्स जो हैं वो चेक करते हैं कि आपके जो वाटर कूलर्स हैं, जो आपके वाटर टैंक्स हैं, वो क्लीन है, उसमें कहीं मॉस्किटो ब्रीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मॉस्किटो ब्रीडिंग हुई और मलेरिया का वाइड स्प्रेड हुआ तो फिर दैट वुड बी अ प्रेशर ऑन द लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटी सिस्टम। एंड उस तरह के एक किसी भी तरह के ऐसे एपिडेमिक को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है पहले से ही अवेयरनेस प्रोग्राम, आपको रेडियोस पे, टीवीज पे लोगों को एजुकेट किया जाता है कि आप अपने कूलर को में पानी ना रहने दें, पौधों को जहाँ पानी दे रहे हैं वहाँ पे पानी खड़ा ना रहने दें, मच्छर को पैदा ना होने दें, दवाई डालें उसके अंदर। वाई दिस थिंग इज हैपनिंग? ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग सो दैट वी डोंट कम टू अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ सिचुएशन वेयर मलेरिया स्प्रेड इन कम्युनिटी एंड देन दैट वुड बी वेरी डेंजरस। तो इस वजह से अब आपने देखा कि सिर्फ हॉस्पिटल बनाना ही काम नहीं, एनवायरनमेंट को चेक भी कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो किसी भी डिसीज को फेस ना कर सके। नेक्स्ट, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ communicable diseases are waterborne, for example diarrhea, worms, hepatitis etc. Very well we are know, मतलब आप ये देखिए कि साफ पानी की प्रॉब्लम अर्बन एरियाज में आए दिन न्यूज पे, चैनल्स पे हो रहा होता है, जहाँ पे लोग अपना आक्रोश प्रकट कर रहे होते हैं। पीपल आर प्रोटेस्टिंग, लुक दिस इज द क्वालिटी ऑफ वाटर वी आर गेटिंग, समटाइम दैट वाटर इज सो बैड
that it seems like it is coming from a sewage instead of coming from a filtered place. ऐसा भी लगता है, इतना गंदा स्मेल, इतनी गंदी होती है, सीवेज लाइंस मिल जाती हैं. तो दिस इज ऑल द, अगर वो पानी आप ऑब्वियसली यू कांट ड्रिंक दैट काइंड ऑफ वाटर. अगर आपने वो पी लिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? Obviously you will be like exposed to have so many waterborne diseases thing. और दूसरी जगह आप देखिए, एक रूरल बहुत ही रिमोट एरिया में मैं जाती हूँ जहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं है लोगों को. राजस्थान में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, हमारे डेजर्ट एरियाज कच्छ वगैरह जो टच करते हैं. और भी रिसेंटली चेन्नई इज बिकमिंग अ सिटी जहाँ पर की वाटर की एक्यूट शॉर्टेज हुई. और इस शॉर्टेज की वजह से आई टेल यू, आपने अगर 6 और 7 months बैक अगर आपने न्यूज़पेपर आप रीड करते हो, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ न्यूज which was saying that the offices, many MNCs in Chennai has instructed its employees to work from home so that they can save water. चेन्नई में इतनी एक्यूट शॉर्टेज थी वाटर की कि वहां की जितनी भी MNCs थी उन्होंने डिक्लेयर, दिस इज बिफोर द क्वारंटाइन पीरियड, बिफोर दिस लॉकडाउन पीरियड, सॉरी, ये सब कोरोना के पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ. क्या था, इतनी पानी की कमी हो गई थी कि चेन्नई के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स थे, ऑफिसेस थी, MNCs थी, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसेस, उन्होंने बोला था कि आप वर्क फ्रॉम होम करो. आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग? Do you read newspapers? Do you go through news? Please make it a habit. If you don't go through newspapers, if you don't see the news channels, please make it a habit, because it is the media, this particular medium of the media is very helpful to keep you aware. अब क्यों बोला उन्होंने कि work from home करो, कि लोग ऑफिस आएंगे तो पानी की खपत ज्यादा होगी. Can you relate? नहाएंगे धोएंगे, ट्रैवलिंग में पानी ज्यादा लगेगा. वो मतलब इस मेजर तक आ गए थे कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप घर बैठ के काम कीजिए, पानी की इतनी शॉर्टेज है. एंड आई हैव बीन टू चेन्नई एंड आई हैव एन एग्जांपल. आई हैव बीन टू अ पर्टिकुलर स्कूल व्हिच वाज डूइंग दिस वाटर सेविंग टेक्निक्स, वाटर हार्वेस्टिंग वाज देयर. अगर आपने पर्टिकुलर आप चेन्नई के बारे में आपने ज्योग्राफी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है तो आपको पता है इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आवर कंट्री. और वहां पर जो है इतना रेनफॉल इतना ज्यादा नहीं है वहां पर. if you understand the concept, if you have gone through, या आप आगे भी पढ़ सकते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर पानी की इतना बारिश नहीं होता. पानी की शॉर्टेज से ये जो पर्टिकुलर एरिया आई एम डिस्कसिंग वो करते हैं. तो अब ऐसी जगह जहाँ लोगों को पानी ही पीने के लिए नहीं है तो उनको जैसा पानी मिलेगा वो पिएंगे. ठीक है, इतनी दूर जाने में अगर आप सोचो कि राजस्थान में कोई औरत या कोई आदमी 2-2 किलोमीटर जाके पानी भर के ला रहा है तो उनकी हेल्थ पे, उनकी टाइम पे, उनकी लाइफस्टाइल पे इसके क्या इफेक्ट होंगे. बीइंग द प्रिविलेज क्लास, हम जो मतलब अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, कई बार हम जो रूरल या रिमोट एरियाज में डिफिकल्टीज हैं उनको हम जो है विजुअलाइज भी नहीं कर पाते. बट द प्रॉब्लम्स आर देयर विच नीड टू बी सॉर्ट आउट. सो इसके अंदर यही बता रही थी कि जितनी भी वाटर ये रिलेटेड चीजें हैं ये भी गवर्नमेंट को इसका भी टेक केयर करना होता है. हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड. और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को उनको फेस करना पड़ता है. लाइक इतनी छोटी एज में उन्हें बीमारी हो जाती है कि उनकी जो आने वाली लाइफ होती है वो बिल्कुल ही जो होती है उसके अंदर जील ही नहीं रहता बिकॉज ऑफ देयर इलनेस. और वो बीमारियां कहाँ से आती है? आपने हिंदी में कई बार टीवी पे भी सुना होगा, एडवर्टीजमेंट आती है जिससे कुपोषण से अपने बच्चों को बचाइए, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन से अपने बच्चों को बचाइए. क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं है तो हाउ विल वी दे प्रूव लाइक सक्सेसफुल, हाउ विल दे ग्रो इनटू अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी personalities? How will they be considered as the asset of a nation, right? अगर वो खुद ही इतने ड्रेन्ड हैं तो ये जो सारी चीजें हैं, बीइंग इट फूड, वाटर, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, केयरिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू ट्रीट द मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, दिस इज ऑल द जॉब of a government has to take. This is the work of the government. So now I hope you are understanding the role of government in health. It is very vast. It has to be like taken care with very attention and care. In order to prevent that and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as
health center, hospitals, laboratories or testing, ambulance services, bank, etc., then can provide the required care and services that patient need. And you relate this with this corona pandemic. What are the steps taken by the healthcare centers, by various governments to face this problem? क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है? देख रहे हैं आप मीडिया से कितना लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, बार बार हाथ धोइए, इतनी दूरी रखिए, वट एवर द precautions the government is like continuously telecasting all these norms to be followed by the people. आप टेलीफोन किसी को मिलाइए, you are going to make a call, first of all you will have to go through that complete advertisement which is there to educate you about the how to be safe from this corona thing. So आप रिलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट का रोल इस कोरोना के पैंडेमिक से. देखिए क्या किया है गवर्नमेंट, इस लेवल तक चली गई कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि दिस इज अ स्प्रेडेबल डिसीज. रिलेट कर रहे हैं, दिस इज इनिशिएटिव. देख रहे हैं आप गवर्नमेंट का रोल उसके अंदर, देख रहे हैं पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, लोगों के बिजनेस खत्म हो रहे हैं. कितने सारा बजट गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं ऐसे लोगों के लिए जिनका काम बंद होने से उनको खाने को भी नहीं मिलेगा. And I think I should end this lecture today with this question to you. Just find out, just give me your views, your findings about what is the role of government regarding the healthcare facility in this period of corona. Okay, let me understand how much you have understood about this thing. So let's end this video. We will be taking the rest of the part in our upcoming sessions. For today, this is the video. Go through this, read your book, and please work on that question which I have given you. That is, what is the role of government in this period of corona pandemic? You can include the role of our Indian government. You can take example from the role of other governments also. So give me a precise detail. This would be your homework for today, and rest we will do in our next video lecture. Take care. Bye bye.